Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are hale and hearty. Welcome to the online lecture 4 of industrial pharmacy. In the previous lecture we have learned the introduction to evaporation and factors affecting evaporation. In this lecture we will study the different types of evaporators. The equipment used in the evaporation may be classified conveniently according to the form of the movement, as this is very important in heat transfer, and can be divided into three main groups, which are natural circulation evaporators, forced circulation evaporators, and film evaporators. There are many commercial varieties of evaporators, although various methods of heating can be used. Steam is the commonest in pharmaceutical practice, and all the evaporators illustrated in this lecture are steam heated. evaporation के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज़ हीट ट्रांसफ़र के मेथड ये डिटरमाइन करते हैं कि एवापोरेटर्स को आप कितनी टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. तीन मेन टाइप्स के अंदर एवापोरेटर्स डिवाइड होते हैं: नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर्स, फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर्स और फिल्म एवापोरेटर्स. कमर्शियल वैरायटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं एवापोरेटर्स की, लेकिन जो मेथड्स यूज़ होते हैं हीटिंग के लिए उनमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं एवापोरेटर्स में हीटिंग में, लेकिन स्टीम मोस्ट कॉमनेस्ट सोर्स है हीटिंग की जो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में एवापोरेटर्स के अंदर यूज़ की जाती है. Let's start with the first kind of evaporator, which is natural circulation evaporator. Evaporators in this category are those in which the movement of the liquid results from convection currents set up by the heating process. There are different kinds of natural circulation evaporators, but we will be discussing only three, which are evaporating pans, evaporating stills and short tube evaporators. Evaporation इस कैटेगरी के अंदर मोस्टली मूवमेंट ऑफ लिक्विड की वजह से होती है, जो कि कन्वेक्शन करंट से रिज़ल्ट करती है हीटिंग प्रोसेस में. डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तीन तरह के एवापोरेटर्स को डिस्कस करेंगे: एवापोरेटिंग पैन्स, एवापोरेटिंग स्टिल्स एंड शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर्स. Let's begin with the first kind of natural circulation evaporators, which is called as evaporating pan. The simplest form of natural circulation evaporator is the evaporating pan. The apparatus consists of a hemispherical or shallower pan constructed from a suitable material such as copper or stainless steel and surrounded by a steam jacket. The hemispherical shape gives the best surface to volume ratio for heating and the largest area for disengagement of vapors. The pan may have a mounting formatting it to be tilted to remove the product, but the shallow form makes this arrangement somewhat unstable, and an outlet at the bottom is commoner. नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर्स में एवापोरेटिंग पैन सिंपलेस्ट फॉर्म है. एपरेटस हेमीस्फेरिकल शेप का होता है और मोस्टली ये कंस्ट्रक्ट हुआ होता है किसी भी सूटेबल मटेरियल का, जैसे कि कॉपर या फिर स्टेनलेस स्टील, और कॉपर स्टेनलेस स्टील सराउंड करते हैं एक स्टीम जैकेट से, जहाँ से हीट सोर्स प्रोवाइड होती है इनसाइड द पैन. हेमीस्फेरिकल शेप बेस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देती है हीटिंग के लिए, और एक लार्जेस्ट एरिया प्रोवाइड करती है वेपर्स की डिसएंगेजमेंट के लिए. पैन को माउंट भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये टिल्ट हो सकता है फॉर रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट,
लेकिन इसकी जो शैलो फॉर्म है ये इस अरेंजमेंट को अनस्टेबल बनाती है। इसी वजह से मोस्ट कॉमनली बॉटम में एक आउटलेट या ओपनिंग होती है प्रोडक्ट रिमूवल के लिए। The advantages of evaporating pans are it is simple and cheap to construct, and it is easy to use and maintain. There are certain disadvantages associated with evaporating pan. Having only natural circulation, the overall coefficient of heat transfer will be poor, and solids are likely to deposit on the surface, leading to decomposition of the product and further deterioration in heat transfer. Also, many products give rise to foaming when boiled under conditions of natural convection. All the liquid is heated at all the time, which may be unsatisfactory with thermolabile materials. The heating surface is limited and decreases proportionally as the size of the pan increases. Furthermore, the heating area will decrease as the concentration of the product occurs. The pan is open so that vapor passes through the atmosphere, which can lead to saturation of the atmosphere, slowing evaporation as well as causing discomfort. Furthermore, it limits the evaporating pan to use the aqueous liquids only. The open design means also that reduced pressure cannot be used, so that the temperature of the boiling cannot be lowered. The evaporating pan can therefore be used only for the concentration of aqueous and thermostable liquids, for example, extracts of licorice. Since many pharmaceutical materials are thermolabile or dissolved in organic solvents such as ethanol, the evaporating pan is limited in the application. इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि नेचुरल सर्कुलेशन होती है सिर्फ, जिसकी वजह से ओवरऑल कोएफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र का बहुत पुअर होता है, और पुअर ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से सॉलिड्स डिपॉजिट करते हैं सरफेस वॉल पर, जिसकी वजह से डीकम्पोजिशन हो सकती है उन प्रोडक्ट्स की जो कि थर्मोलेबाइल हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स की हीट ट्रांसफ़र की वजह से डिटीरियोरेशन और डीकम्पोजिशन हो सकती है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जब बॉयल की जाती हैं नेचुरल कन्वेक्शन में तो वो फोमिंग करती हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि सारा का सारा लिक्विड एक टाइम पर हीट हो रहा होता है, जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री होता है थर्मोलेबाइल मटीरियल्स के लिए। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि हीटिंग सरफेस लिमिटेड होती है और प्रोपोर्शनली डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे पैन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। हीटिंग एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की अकर होती है। पैन क्योंकि ओपन है और वेपर पास होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये सैचुरेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। इसी के साथ साथ ये लिमिट करता है एवापोरेटिंग पैन को कि इसे सिर्फ एक्वस लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जा सके, क्योंकि ओपन डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप उसमें रिड्यूस प्रेशर यूज़ नहीं कर सकते, और इसकी वजह से टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको लोअर नहीं किया जा सकता। एवापोरेटिंग पैन को इसी वजह से सिर्फ एक्वस लिक्विड्स या थर्मोस्टेबल लिक्विड्स की कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स ऐसे हैं जो थर्मोलेबाइल हैं और डिज़ोल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि इथेनॉल है। एवापोरेटिंग पैन की एप्लीकेशन ऐसे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए लिमिटेड है। Second type of equipment which uses the natural circulation is evaporating stills. This type of evaporator is known commonly as a still, since it is essentially a vessel similar to the evaporating pan with a cover that connects it to a condenser so that the liquid is distilled off. Often a quick release system of clamps which allows the cover to be removed easily for access to the interior of the vessel for cleaning or removal of the product may be used.
सेकेंड टाइप का नेचुरल सर्कुलेशन एवापरेटिंग स्टिल है। ये एवापरेटिंग स्टिल मोर और लेस सिमिलर होता है एवापरेटिंग पैन के। डिफरेंस वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ पर इसके ऊपर एक लिड है और ये लिड के साथ कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है, और लिक्विड को जिसे एवापोरेट किया जा रहा है वेपर्स की फॉर्म में, उसे दोबारा डिस्टिल किया जा सकता है। एक क्विक रिलीज सिस्टम लगा हुआ होता है क्लैम्प्स के साथ, जो ये अलाउ करता है कि कवर को इजीली रिमूव किया जा सके, ताकि वेसल के इंटीरियर में जो लिक्विड है उसको एक्सेस किया जा सके और वेसल को क्लीन किया जा सके फॉर रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स। The advantages of evaporating still includes like the evaporating pan, it is quite simple to construct and easy to clean and maintain. The vapor is condensed which speeds evaporation, reduces inconvenience and allows equipment to be used for solvents other than water, for example ethanol. A receiver and vacuum pump can be fitted to the condenser, permitting operation under reduced pressure and hence at lower temperatures. Evaporating pan की तरह ये simple to construct है और easy to clean और maintain है। वेपर्स इसमें कंडेंस हो सकते हैं जो कि एवापोरेशन को स्पीड अप करते हैं और इनकन्वीनियंस को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इक्विपमेंट को यूज़ किया जा सकता है ऐसे सॉल्वेंट्स के लिए जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। रिसीवर और वैक्यूम पंप को फिट किया जा सकता है कंडेंसर के साथ, ताकि एवापोरेटिंग स्टिल को अंडर रिड्यूस प्रेशर भी ऑपरेट किया जा सके, और रिड्यूस प्रेशर ऑपरेट करने की वजह से एवापोरेटिंग स्टिल में बॉइलिंग या एवापोरेशन लोअर टेम्परेचर्स पे अचीव की जा सकती है। Still, there are certain disadvantages associated with evaporating stills, and they are the evaporating still is natural convection only. All the liquid is heated all the times. The heating surface is limited. As the advantages show, this still can be used for evaporating liquids in general with aqueous or other solvents. Thermolabile materials can be evaporated under reduced pressure, while the easy removability of the still head makes it convenient for evaporating extract through dryness. This method is used widely in the pharmaceutical industry, where it may be necessary to deal with the small batches of variety of materials. The technical disadvantages are outweighed by the ease with which the plant can be opened and cleaned for transference to another job. डिसएडवांटेजेस में 3 डिसएडवांटेजेस हैं इसके, कि इसके अंदर भी नेचुरल कन्वेक्शन होती है सिर्फ, और तमाम का तमाम लिक्विड हर वक्त हीट को हो रहा होता है, और हीटिंग सरफेस लिमिटेड है। अगर हम कंक्लूड करें तो इसके एडवांटेजेस ये शो करते हैं कि एवापोरेटिंग स्टिल को हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे लिक्विड्स को एवापोरेट करने के लिए जो कि एक्वस फॉर्म में अवेलेबल हैं, और ऐसे लिक्विड्स को भी एवापोरेट करने के लिए जो कि नॉन एक्वस लिक्विड्स हैं, ये सॉल्वेंट्स हैं। थर्मोलेबाइल मटेरियल्स को हम एवापोरेट कर सकते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर, जबकि स्टिल हेड की रिमूवेबिलिटी इजी होती है, जो कि ये कन्वीनियंट बनाती है कि एवापोरेटिंग एक्सट्रैक्ट्स को ड्राइनेस की तरफ लाया जा सके। इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और स्पेसिफिकली वहाँ जहाँ स्मॉल बैचेस प्रिपेयर हो रहे होते हैं। और टेक्निकल डिसएडवांटेज इसका आउटवे हो जाता है बाय द ईज़ विद विच द प्लांट कैन बी ओपन, क्लीन्ड एंड the product can be changed. Third type of natural circulation evaporators are called as short tube evaporators. As the size of the evaporator increases, heating by means of an external steam jacket becomes inadequate. The short tube evaporators, as the name implies, uses steam heated tubes instead of surrounding the vessel by a steam jacket.
The lower portion of the evaporator consists of a nest of tubes, as you can see over here. The liquid inside the steam and the steam outside. In these tubes, the liquid is inside and the steam is outside. These tubes are from 1 to 2 meter in length and from 40 to 80 millimeter in diameter, with the tubes up to 1000 in number, in a vessel up to 2 to 5 meter or more in diameter. This part of the evaporator is known as calandria. The liquid is maintained at a level slightly above the top of the tubes. The space above this is being left for the disengagement of vapors from the boiling liquid. In operation, the liquid in the tubes is heated by the steam and begins to boil when the mixture of the liquid and vapor will shoot up the tube in a small manner to that of the liquid that is allowed to boil too vigorously in a test tube. This sets up a circulation with boiling liquid rising up these small tubes of the calandria and returning down to the larger downtake. जैसे जैसे एवापोरेटर का साइज़ इंक्रीज़ होता है, हीटिंग बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल जैकेट इनएडिक्वेट हो जाती है. शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर्स में स्टीम हीटेड ट्यूब्स यूज़ होती हैं इंस्टेड ऑफ स्टीम जैकेटेड वेसल. इसका जो लोअर पोर्शन है वो लोअर पोर्शन नेस्ट ऑफ ट्यूब्स का बना हुआ होता है और इन नेस्ट ऑफ ट्यूब्स में लिक्विड इनसाइड द ट्यूब होता है और स्टीम आउटसाइड होती है. ये ट्यूब्स 1 to 2 मीटर इन लेंथ होती हैं और एक ट्यूब 40 to 80 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है और एक एवापोरेटिंग शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर के अंदर 1000 नंबर तक ट्यूब एग्जिस्ट करती हैं ऐसी वेसल में जो 2 to 5 मीटर या इससे ज़्यादा डायमीटर की होती है. ये वाला पार्ट शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर का जहाँ से स्टीम इन हो रही है और नेस्ट ऑफ ट्यूब्स अटैच्ड हैं, कैलेंड्रिया कहलाता है. लिक्विड स्लाइटली अबव दिस कैलेंड्रिया मेंटेन किया जाता है टॉप ऑफ द ट्यूब्स में और इसके ऊपर जो स्पेस है वो वेकेंट स्पेस होती है या लेफ्ट स्पेस होती है जो कि डिसएंगेजमेंट स्पेस कहलाती है, जो वेपर्स की डिसएंगेजमेंट के लिए यूज़ होती है. वो वेपर्स जो इस बॉइलिंग लिक्विड से निकल रहे हैं. ऑपरेशन के दौरान लिक्विड इन ट्यूब्स के अंदर हीट होता है और स्टीम की वजह से हीट होता है तो लिक्विड इसमें बॉयल होना शुरू होता है और मिक्सचर लिक्विड्स का इसी तरह से अपवर्ड मूव करता है जिस तरह से किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड को बॉयल करने के लिए रखा जाए तो विगरसली टेस्ट ट्यूब से अपवर्ड मूव करेगा. ये एक सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है बॉइलिंग लिक्विड में और बॉइलिंग लिक्विड राइज होता है यहाँ पर स्मॉलर ट्यूब्स में और रिटर्न डाउन करता है टू लार्जर डाउन टेक या सेंट्रल डाउन टेक. शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर को भी हम कंडेंसर के साथ अटैच कर सकते हैं. The advantages of short tube evaporators are use of tubular calandria increases the heating area possibly by a factor of 10 or 15 compared with that of an external jacket. The vigorous circulation reduces boundary layers and keeps solids in suspension, so increasing the rate of heat transfer. As a result, overall coefficient of heat transfer is from 3 to 5 times greater than those found in evaporating pan.
Like the still, a condenser and receiver can be attached, giving the advantages referred to under the evaporating still. ट्यूब्यूलर कैलेंड्रिया के यूज़ की वजह से हीटिंग एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और पॉसिबली बाय फैक्टर 10 to 15 इंक्रीज़ होता है जब हम इसे कंपेयर करते हैं किसी भी ऐसे एवापोरेटिंग इक्विपमेंट के साथ जो सिर्फ एक एक्सटर्नल जैकेट रखता है, जैसे कि एवापोरेटिंग स्टिल है। इसके अंदर विगरस सर्कुलेशन होती है और ये विगरस सर्कुलेशन बाउंड्री लेयर्स को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से सॉलिड सस्पेंशन की फॉर्म में ही रहते हैं और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज़ होता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज़ होने की वजह से ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज़ होता है, जो कि 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर होता है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द एवापोरेटिंग पैन। जैसे एवापोरेटिंग स्टिल की तरह शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर्स में भी कंडेंसर और रिसीवर को अटैच किया जा सकता है, जिसकी वजह से वेपर्स को कलेक्ट किया जा सकता है बाय कंडेंसेशन। There are certain disadvantages associated with short tube evaporators. Since the evaporator is filled to a point above the level of calandria, a considerable amount of the liquid is heated for a long time. The effect of this continual heating can be reduced to some extent by removing strong liquid slowly from the outlet at the bottom of the vessel. The plant is much more complicated, making it expensive to construct and increasing the difficulty of cleaning and maintenance compared with this simple still. The head of the liquor increases the pressure at the bottom of the vessel, and in large evaporators where the liquid depth may be the order of 2 meters, this may give rise to a pressure of about 0.25 bar, leading to elevation of the boiling point by 5 or 6 degrees Celsius. This reduces the effective temperature gradient and may affect heat sensitive materials. क्योंकि evaporator फिल्ड होता है अबव द कैलेंड्रिया और इसी वजह से एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लिक्विड है जो कि हीट होती रहती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस कंटिन्यूअल हीटिंग के इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट by removing strong liquids slowly from the outlet at the bottom of the vessel. Plant complicated है, इसी वजह से it is expensive to construct और इसमें cleaning और maintenance की difficulty increase हो जाती है जब हम इसे compare करते हैं simple evaporating still के साथ। हेड ऑफ लिक्वर इंक्रीज़ करता है प्रेशर को बॉटम में वेसल की, और लार्ज एवेपोरेटर्स में जहाँ पर लिक्विड डेप्थ 2 मीटर तक होती है ये प्रेशर रेज़ हो सकता है अप टू 0.25 बार, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है 5 to 6 डिग्री सेल्सियस तक। ये रिड्यूस करता है इफ़ेक्टिव टेम्परेचर ग्रेडियंट को और इसी वजह से हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट क्लियरली दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट विल बी द मोस्ट यूजफुल फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल where the process can be operated continuously on one type of material. The complexity of the plant makes it much less suitable for changing from one product to another. The method can be used, for example, for extracts manufactured in large quantities such as cascara, or for more general products such as sugars or salts. The short tube evaporators does not differ fundamentally from the evaporating still, since it is merely a larger vessel with a calandria instead of a jacket to give improved heat transfer rates. इस टाइप के इक्विपमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए जो लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर होती हैं, और ऐसे प्रोसेसेस के लिए जो कंटिन्यूसली ऑपरेट होते हैं और सिर्फ एक टाइप के मटेरियल के ऊपर ऑपरेट होते हैं। इस इक्विपमेंट और प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है कि ये सूटेबल नहीं होता चेंज ओवर्स के लिए, जहाँ पर हम इसे चेंज कर सकें एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की एवापोरेशन के लिए।
इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है ऐसे एक्सट्रैक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग होती है जिनकी, जैसे कि कैस्कारा एक्सट्रैक्ट्स हैं या फिर शुगर की प्रोडक्शन है या सॉल्ट की प्रोडक्शन है। शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर्स फंडामेंटली डिफ़र नहीं करते इवेपोरेटिंग स्किल्स से, क्योंकि इनमें लार्जर वेसल्स हैं और कैलेंड्रिया है जैकेट के बजाय। कैलेंड्रियाज सिर्फ इम्प्रूव रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र देते हैं। So this is the end of this lecture. In the next lecture we will continue our discussion on evaporation and evaporators, where we will learn the forced circulation evaporators and film evaporators. Thank you for patiently listening to this lecture. For your queries, use HULMS or we can discuss in physical class. Allah Hafiz.